الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وانتم لا تعلمون اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بکری بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا ہے، بس تم اللہ کے لیے مصالحے نہ تراشو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کریم کا بالکل واضح حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مصالحے مت بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم میں فرمایا، اب مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے اس صریح حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے، روحانی صفحہ نمبر اس کا 75 ہے اور روحانی خزائن جلد 3 کا صفحہ نمبر 90 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو تندوے سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لیے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے، اور تندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مثال بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ کو تندوے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو ناظرین، جب مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اس توہین ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی توہین پر تحریر پر اعتراض کیا، تو پاکٹ بک میں ملک عبد الرحمان خادم نے اپنی پاکٹ بک کے اندر اس کا جواب دیا۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے ملک عبد الرحمان خادم کی پاکٹ بک، یہ دیکھیں اس کا صفحہ نمبر، یہ 1952 والا ایڈیشن ہے، تو اس کے صفحہ نمبر جو ہے 631 پر لکھتا ہے 1952 والے ایڈیشن کے، اور 1945 والا جو ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 997 پر اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ملک عبد الرحمان خادم اپنی کتاب پاکٹ بک میں لکھتا ہے کہ خدا تعالی لیسا کمثلہ شیء کا مصداق تو ضرور ہے، مگر اس کی بعض صفات کو بیان کرنے کے لیے اگر دنیوی مثال نہ دی جائے تو کہاں سے دی جائے؟ خود قرآن مجید نے مثل نور ہی کا مشکات فرمایا ہے، یعنی خدا کے نور کی مثال ایک قندیل کی طرح ہے۔ جس طرح نور خدا بندی کی مثال مشکات سے دی جا سکتی ہے، وہیں ہی اس طرح خدا کی صفات کا ایک ہی وقت میں
मुख्तलिफ औकात और मकामात में रंग पजीर होना भी तेंदुए के जाल वाली मिसाल से बयान किया जा सकता है। तो नाज़रीन, हम अब मलक अब्दुर्रहमान खादिम गुजराती की इस जवाब का पोस्टमार्टम करते हैं जो उसने दिया है। यहाँ पर इस जगह पर मलक अब्दुर्रहमान खादिम गुजराती ने अपनी किताब पॉकेट बुक में ये कहकर सरी झूठ बोला और बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश की है कि खुदा की ताकत तेंदुए के जाल की तरह है। पहली बात तो ये कि तेंदुआ अल्लाह ताला का पैदा करदा एक 4 टांगों वाला जानवर है, और मिर्जा कादियानी ने भी अल्लाह ताला की ताकत के इजहार की बात नहीं की, बल्कि साफ लफ्जों में लिखा है। ये देखें, तहरीर आपके सामने है, ये आपको जो पॉकेट बुक की तहरीर पढ़ के सुनाई है सफा 631 की, ये उसका स्कैन है। और फिर ये देखें, ये तहरीर आपके सामने है। क्या लिखा कि इस बयान मज़कूरा बाला की तस्वीर दिखलाने के लिए तखयली तौर पर हम फर्ज कर सकते हैं कि क़य्यूमुल आलमीन एक ऐसा वजूद आज़म है। अल्लाह ताला की ताकत का इज़हार नहीं, अल्लाह ताला के वजूद का जिक्र किया जा रहा है कि एक ऐसा वजूद आज़म है जिसके लिए बेशुमार हाथ, बेशुमार पैर और हर एक उज़व इस कसरत से है कि तादाद से खारिज और ला इंतहा अर्ज़ और तूर रखता है। और तंदवी की तरह इस वजूद आज़म की तारे भी हैं जो सफ़ा हस्ती के तमाम किनारों तक फैल रही हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला के वजूद को मखलूक के जिस्म से मुशाबियत की बात की जा रही है। अल्लाह ताला के वजूद की जो है मखलूक के जिस्म से मुशाबियत दी जा रही है। हाँ, हम तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ हैं। उन हाथों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है, फरमा के वमा रमैता इज़ रमैता। हम तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला के पाँव है, पिंडली है, चेहरा है, लेकिन क्या अल्लाह ताला के हाथ जो हैं वो हम इंसानों की तरह हैं या मखलूक की तरह हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का वजूद, अल्लाह ताला के वो हाथ, पाँव, पिंडली और चेहरा ऐसा है जो उसकी शान के लायक है। उसको मखलूक से तशबीह नहीं दी जा सकती। याद रखिए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अल्लाह ताला के वजूद को उसकी मखलूक से तशबीह दी है। जहां तक ताल्लुक है सूरा नूर की इस आयत का, जिसका हवाला दिया है मलक अब्दुर्रहमान खादिम ने, तो याद रखिए इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की मिसाल नहीं दी, बल्कि अपने नूर की मिसाल दी है। यूं समझ लीजिए कि सूरा नूर की आयत में तशबीहुर रोया बिर रोया है, ना कि तशबीहुल मरई बिल मरई। यानी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इस नूर का, इसका नूर देखने में ऐसे मशकात की तरह है जिसमें फला फला चीज है, जहां दिखने या नजर आने की कैफियत बयान की जा रही है। अल्लाह ताला के नूर की कैफियत और हकीकत बयान नहीं की जा रही, बल्कि ये बताया जा रहा है कि जब इंसान देखता है मिशकात को तो अल्लाह ताला का नूर दिखने में ऐसा दिखेगा, लेकिन अल्लाह के नूर, अल्लाह के वजूद की मिसाल नहीं दी जा रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। तो इसमें तो एक तरफ ये वाज़ेह किया गया कि अल्लाह ताला की मानंद कोई चीज नहीं है, और दूसरी तरफ साथ ही अल्लाह ताला के देखने की सिफत बयान की गई, यानी अल्लाह ताला का देखना और सुनना जो है उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। हाँ, इंसान भी देखता भी है, सुनता भी है, लेकिन क्या इंसान का देखना और सुनना और अल्लाह ताला का देखना और सुनना एक बराबर है? नहीं, अल्लाह के देखने और सुनने की मिसाल इंसान के देखने और सुनने से नहीं दी जा सकती। और याद रखिए, यहाँ पर अल्लाह के आसमान और जमीन का नूर होने का,
फिर आगे बताता चलूं आपको वाज़ेह तौर पे कि इसी तरह जो सिफत बयान की गई कि अल्लाह ताला का देखना और सुनना जो है उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो लोगों के देखने और सुनने की तरह नहीं, लेकिन लोगों के अल्लाह ताला के नूर को देखने की मिसाल दी जा सकती है कि लोग अल्लाह ताला के नूर को अगर देखें तो वो उसे उन्हें ऐसे मिशकात की तरह नजर आएगा जिसमें फला फला चीजें मौजूद होंगी। इसी तरह कादियानी ये भी धोखा देने की कोशिश करते हैं कि देखें जी अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में फरमाया है कि इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौकहा, कि बेशक अल्लाह ताला उससे नहीं शर्माता कि कोई भी मिसाल बयान करे मच्छर की हो या फिर उसकी जो उससे ऊपर है। तो याद रखिए, अगर अल्लाह ताला ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की वो वही और इल्हाम के जरिए अपने पोशीदा आने की मिसाल बयान की है, तो याद रखिए वाज़ेह तौर पे बताता चलूं कि अल्लाह ताला ने, ये कादियानी कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे भी कोई छोटी चीज हो या उससे भी ऊपर हो, तो कहते हैं कादियानी कि अगर अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब को वही और इल्हाम के जरिए अपने पोशीदा आने की मिसाल चोरों की तरह दे दी तो इस पर एतराज किया है। तो सुनिए उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात या सफ़ात की मिसाल के बारे में ये बात नहीं कही कि वो अपनी ज़ात के बारे में मच्छर की मिसाल देने से नहीं शर्माता। इसलिए शायद को अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात पर चश्मा करना भी वाज़ेह तौर पे धोखा देना और कुरान करीम की तहरीफ मानवी है और अल्लाह ताला की ज़ात पर इफ्तरा भी है। अल्लाह ताला तो वाज़ेह तौर पे ऐलान फरमाता है लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, और सुनिए अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन का नूर है, यानी आसमान और ज़मीन जो रोशन है तो अल्लाह के नूर ही से रोशन है, वो ना हो तो कुछ भी ना हो। शाह अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यानी अल्लाह से रौनक और बस्ती है और ज़मीन और आसमान की उसकी मदद ना हो तो सब वीरान हो जाएं। याद रहिए कि यहाँ अल्लाह के आसमानों ज़मीन का नूर होने का ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला का ज़ाती नूर आसमानों ज़मीन का नूर है और उसे रोशन करने वाला है। उसकी दलील यह है कि इस आयत में मज़कूर नूर की मिसाल बयान की गई, जबकि अल्लाह की कोई मिसाल है ही नहीं, जैसा कि फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन, इसकी मिसल कोई चीज़ नहीं है। नाज़रीन, ये बात भी काबिल गौर है कि इस आयत में इस नूर का जिक्र है जिससे आसमान और ज़मीन रोशन है, जबकि अल्लाह ताला का ज़ाती नूर हजाब के पीछे है। सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में खड़े होकर 5 बातें बयान फरमाई। आपने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ला यनामु वला यंबगी लहु अन यनाम यख्फिजुल क़िस्त व यरफ़अहु युरफ़ा इलैहि अमलुल लैलि क़ब्ला अमलिन नहारी व अमलुन नहारी क़ब्ला अमलिल लैलि हिजाबुहुन नूर लौ कशफ़हु ला अहरकत सुबहातु वजहिही मंतहा इलैहि बसरुहु मिन खल्क़ि। सही मुस्लिम किताबुल ईमान में ये रवायत है। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल सोता नहीं है और उसके लायक ही नहीं कि वो सोए, वो तराजू को नीचा करता है और उसे ऊंचा करता है। रात का अमल दिन के अमल से पहले और दिन का अमल रात के अमल से पहले उसकी तरफ ऊपर ले जाया जाता है और उसका हजाब नूर है। अगर वो उसे हटा दे तो उसके चेहरे की शुआएं उसकी मखलूक में से हर उस चीज को जला दें जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है। तो नाज़रीन, इस आयत में नूर का मानी ज़ू नूर है, यानी रोशन करने वाला, जैसा कि ज़ैदुन अदल का मानी ये नहीं कि ज़ैद अदलो इंसाफ है, बल्कि उसका मानी है कि ज़ैद अदलो इंसाफ करने वाला है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, तफसीर तबरी में ये मौजूद है कि मसलु नूरिही कमिशकातिन काला मसलु हदाहु फी
कल्बिल मुमिन कमा यकादु ज़ैतु साफी युज़ीउ क़ब्ल अन तमस्सहु नारु फ़इज़ा मस्सतहु नारु ज़दादा ज़ौअन अला ज़ैदौइन कज़ालिका यकूनु क़ल्बुल मुमिन यअमलु बिल हुदा क़ब्ल अन यातियहुल इल्मु फ़इज़ा जाअहुल इल्मु अज़दादा हुदन अला हुदन व नूरन अला नूर कि इसके नूर की मिसाल एक ताक की सी है। फरमाया मोमन के दिल में अल्लाह ताला की हदायत की मिसाल इस तरह है जैसे साफ जैतून का तेल करीब होता है कि उससे पहले ही रोशन हो जाए कि उसे आग छुए, फिर जब उसे आग छूती है तो वो रोशनी पर रोशनी में बढ़ जाता है। ऐसे ही मोमन का दिल है कि उससे पहले ही हदायत पर अमल करने वाला होता है कि उसके पास इल्म आए, फिर जब उसके पास इल्म आता है तो वो हदायत पर हदायत में बढ़ जाता है और नूर पर नूर में बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, आयत में मोमन के दिल में अल्लाह की हदायत के नूर को मिसाल देकर ज्यादा से ज्यादा रोशन बयान करना मकसूद है। इसके लिए ऐसे चिराग की रोशनी के साथ तशबीह दी गई जो आयत के नज़ूल के वक्त रात के अंधेरे में रोशनी के लिए इंसानी इस्तेमाल में आने वाली सबसे रोशन चीज थी, और उसकी रोशनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के जो असबाब व ज़राए हो सकते थे वो भी साथ जिक्र फरमा दिए। तो नाज़रीन, ये है उसकी बात का रद्द जवाब जो मलिक अब्दुर्रहमान खादिम ने ताबीर की है, ये कह करके कि लैसा कमिस्लिही शैउन, खुदा ताला लैसा कमिस्लिही शैउन का मिस्दाक तो ज़रूर है, मगर उसकी बात सफ़ात को बयान करने के लिए अगर दनीवी मसाल ना दी जाए तो कहाँ से दी जाए। खुद कुरान मजीद ने मसल नूर एक मिशकात फरमाया, यानी खुदा के नूर की मिसाल एक कंदील की तरह है। जिस तरह नूर खुदाबंदी की मिसाल मशकात से दी जा सकती है, वहीं नहीं इस तरह खुदा की सफ़ात का एक ही वक्त में मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ मकामात में असर पजीर होना भी तेंदुए के जाल वाली मिसाल से बयान किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये था मलिक अब्दुर्रहमान खादिम के दज्जल का जवाब। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखे तजल्लियात इलाहिया किताब है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की, रूहानी हुसैन जिल्द 20 का सफ़ा नंबर 396 है। उसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि वो खुदा जिसके कब्जा में जर्रा जर्रा है उससे इंसान कहाँ भाग सकता है। वो फरमाता है कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा। अल्लाह ताला की मिसाल चोरों की तरह पोशीदा, अल्लाह ताला को चोर करार दिया जा रहा है, चोरों की मानंद करार दिया जा रहा है। बताओ, चोर जो हैं वो मुआशरे में कहाँ अच्छा समझे जाते हैं। चोरों को लोग बुरा जानते हैं और चोरी करना यकीनन बुराई है, बुरा फेल है। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह ताला को चोरों से तशबीह दे रहा है। अगर अल्लाह ताला के पोशीदा आने की ही मिसाल देनी थी, अगर थोड़ी सी भी अकल और शऊर होती और रत्ती बराबर भी ईमान होता तो कह सकता था कि जिस तरह एक फौजी एक सिपाही घात लगाकर हमला करता है छुपकर पोशीदा होकर, इस तरह अल्लाह ताला भी पोशीदा होकर आ सकता है। अगर ऐसे मिसाल ही देनी थी, हालांकि ये मिसाल देना भी जायज और दुरुस्त नहीं, लेकिन ये बात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला की जात पर झूठ बांधा, इफ्तरा किया और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा। हालांकि ना कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये बात बयान की, ना हदीस नबविया में अगर ये बयान की है तो मिर्जा कादियानी के खुदाई जल्लाश काला कालू ने बयान की है। अल्लाह ताला तो नहीं फरमाता, ना ही अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी हदीस कुदसी में कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं चोरों की तरह पोशीदा होऊंगा। ये मिर्जा कादियानी ने अल्लाह ताला की जात पर इफ्तरा किया है या शैतान ने उस पर यह वही नाज़िल किया कि वो अल्लाह ताला की तौहीन का मुर्तकब हो, अल्लाह की तौहीन करे। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे ये देखें, सिराज मनीर किताब है, सफ़ा 64 है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 12 का।
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि मैं जानता हूं कि वो खुदा जो हमारा खुदा है एक खा जाने वाली आग है। खा जाने वाली आग, ये मजूसियों का खुदा तो हो सकता है, जो खुदा जो सूरज की पूजा करते हैं, जो आग की पूजा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला खा जाने वाली आग नहीं हो सकती, ना अल्लाह को मखलूक से तशबीह दी जा सकती है। ये भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का खुदा तो हो सकता है, उम्मत मुसलमान का खुदा नहीं हो सकता खा जाने वाली आग। ये सरीहन अल्लाह ताला की तौहीन की जा रही है और अल्लाह ताला की गुस्ताखी की जा रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखें बराहीन आमदिया हिस्सा अव्वल, उसके सफ़ा नंबर 662 के ऊपर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपना ये अलहाम अरबी में दर्ज किया, रब्बुना आज। इसका तर्जमा भी मिर्जा कादियानी ने सफ़ा नंबर 663 के हाशिये में किया। कहता है कि हमारा रब आजी है, इसके माने अभी तक मालूम नहीं हुए। तो जनाब पहली बात तो ये है कि हमारा रब आजी है। कहता है आजी के माने मालूम नहीं हुए, हालांकि लफ्ज़ आज जो है हजरात गिरामी कदर, ये लफ्ज़ आज हाथी दांत को कहते हैं। इस एतराज़ का जवाब देते हुए मलिक अब्दुर्रहमान खादिम अपनी किताब पाकेट बुक में लिखता है, ये देखें, कहता है ये लफ्ज़ आज हाथी दांत नहीं बल्कि आज जुन बेतशदीद जीम है, जिसका तर्जमा पुकारने वाला है, आवाज़ देने वाला है। ये लफ्ज़ अज से मश्तक है। देखिए लुगत में अज्जा अज्जन व अजीजन, आवाज़ करो, बांग करो, व मिनहुल हदीस व अफजलुल हज्ज अल अज्ज व सज्जो, यानी बर्दाश्तन आवाज़ बेतलबी व कुर्बान करदन हदियारा मुंतहा अल फराज दरिया के अज्जा अज्जन व अजीजन के मानी आवाज़ देने और पुकारने के हैं। जैसा कि हदीस में है कि हज में अफजल तरीन आवाज़ देना तलबी और लब्बैक कहना है और कुर्बानी देना है। अलहाम का मतलब यह है कि हमारा खुदा दुनिया को अपनी तरफ बुलाता है। ये तोसी पेश की है मलिक अब्दुर्रहमान खादिम ने। तो नाज़रीन, लफ्ज़ आज के लुगत में मुख्तलिफ मानी दिए गए हैं, जिनमें एक मानी हाथी दांत के भी हैं, और इसी तरह किसी मजलूम को अपने मसीहा को पुकारने वाले के लिए भी लफ्ज़ आज इस्तेमाल होता है कि एक मजलूम शख्स है, अपने मसीहा को पुकारता है कि मेरी मदद करो। मलिक अब्दुर्रहमान खादिम ने भी आज का मतलब पुकारने वाला बयान किया है और दलील के तौर पर तलबी को पेश किया। तो जनाब अली, तलबी में एक इंसान यानी मखलूक अपने खालिक को पुकारती है, इंसान अपने रब को पुकारता है, ना कि रब अपनी मखलूक को पुकारता है। इंसान कहता है लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये इंसान कहता है तलबी में कि मैं हाजिर हूँ या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, लेकिन अल्लाह नहीं पुकार रहा, इंसान पुकार रहा है, मखलूक पुकार रही है अपने रब को तलबी के अंदर। पाकेट बुक की पेश करदा बहस से भी सिर्फ इतना साबित होता है कि मखलूक का अपने खालिक को पुकारना आज कहलाएगा, ना कि खालिक का अपनी मखलूक को पुकारना। तब भी रब्बे कायनात को आज करार देना तौहीने बारी ताला ही साबित होता है। और सोचने की बात तो ये है कि मलिक अब्दुर्रहमान खादिम गुजराती भी मदई सुस्त गवाह चुस्त वाला किरदार अदा कर रहा है। मुतकल्लम और मलहम साहब कहते हैं मुझे अपने सलाम के मानी मालूम नहीं हुए, और मलिक साहब इस सलाम के मानी नहीं तशरीफी बयान कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर कृष्ण जी उनके दौर में जिंदा होते, मिर्जा कादियानी आज के कादियानियों के दौर में जिंदा होता, तो ये लोग उनको नबुव्वत सिखाते और बताते कि नबुव्वत किस तरह की जाती है। नाज़रीन, मिर्जा कादियानी
जो मदई अलहाम होने का दावी है, मदई नबूवत का मदई है, नबूवत का मदई मुलहम होने का मदई है, कहता है कि उस पर अल्लाह ताला की वही होती है, उस पर जो है वो नबी है। तो जनाब वो कहता है जिस पर वही नाज़िल हुई बकौल उसके कि इसके मानी मुझे मालूम नहीं हुए। तो इसका मतलब है कादियानियों के नबी को ये मानी मालूम नहीं हुए, लेकिन कादियानी ज़ुर्रियत को ये मानी मालूम है। कादियानी के नबी को कादियानियों के खुदाए जल्लाश ने इसके मानी नहीं बताए, लेकिन कादियानियों के नबी से ज्यादा कादियानी उम्मती ज्यादा इल्म रखते हैं और ज्यादा जो हैं वो मिर्जा कादियानी के अलहामात को समझने वाले हैं। ये है कादियानियों की हालत जार, ये है कादियानियों की सोच और फिक्र जो मैंने आज आपके सामने तफसील के साथ बयान कर दी है कि कादियानियों का करैक्टर, इस बारे में अकीदा क्या है। अल्लाह ताला कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे इस हवाले से ऐलान करता है, बार बार फरमाता है, रब्बे कायनात ऐलान करता है कि अल्लाह ताला की मसाल कोई नहीं फरमाया कि लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, क्या कोई चीज उसकी मानंद नहीं और वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। फिर फरमाया फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल अन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, कि बस तुम अल्लाह के लिए मसालें बयान न करो, मसाले न तराशो, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जबकि मिर्जा कादियानी ने कुरान करीम की सरी मुखालफत करते हुए अल्लाह ताला की मसाल कभी तिंदवे से दी, कभी अल्लाह ताला को चोरों की मानंद करार दिया, और वो भी अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके कि अल्लाह फरमाता है मैं चोरों की तरह पोशीदा हूँगा। और कभी कहा कि हमारा खुदा खा जाने वाली आग है, कभी कहा कि हमारा रब जो है वो आजी है, जिसके मानी मालूम नहीं हुए। तो जनाब अल्लाह ताला के इस हुक्म की नाफरमानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने की, क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमाया फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, कि अल्लाह की मिसालें बयान न करो, मना किया अल्लाह ताला ने। मिर्जा कादियानी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो रब की बात को नहीं मानूंगा, मैं तो मुखालफत करूंगा। और फिर वो मिसालें बयान की जिनसे अल्लाह ताला की तौहीन भी साबित होती है और अल्लाह ताला की नाफरमानी भी। तो नाज़रीन अब सवाल ये पैदा होता है, कादियानी हजरात आपके साथ ये सवाल रखना चाहता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दावा तो ये है कि उसे जो नबुव्वत मिली है वो कामिल अतात की बिना पर मिली है, तो उसका कुरान करीम की ये सरी नाफरमानी करना, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करना, क्या यही अतात थी? क्योंकि रब्बे कायनात ने तो मना फरमाया था और फरमाया कि फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, कि जनाब मसालें बयान न करो अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला की नाफरमानी करना क्या यही कामिल अतात का सबूत है? कादियानियों गौर फिक्र करो, तदब्बर करो। मैंने आप तक जो हक बात पहुंचा दी है जो मेरा फर्ज था। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसी सिलसिले में जो मकाम रब्बुल आलमीन और हकीकत कादियानियत का उन्वान से लेक्चर का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर जो होगा आइंदा हफ्ते में वो इस पर होगा कि क्या अल्लाह ताला की बीवी और औलाद हो सकती है, इस बारे में इस्लामी अकीदा क्या है और कादियानी अकीदा क्या है। इंशाअल्लाह इस पर तफसील के साथ दलाइल आपके सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना सुनाया है उसको हक बात को कबूल करने की, समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।